Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Students, good morning once again. Let's begin with chapter number 14. We are going to start chapter number 14 today, that is statistics. Statistics. There are lies, damn lies and statistics. This is a quotation given by a mathematician, Disraeli. Statistics. As the basic concepts of statistics you have already learned in class 9. 9 class में आपने पढ़ा हुआ है frequency distribution, group data, ungrouped data, and you have also learned how to find out the mean, median and mode for ungrouped data. We'll just have a recall of whatever you have learnt in class 9. Sorry, excuse me. So then further we'll continue with the topic and we'll discuss what we have to learn in this part. So the statistics, as you have learnt in class 9, it is used in two senses, singular sense and plural sense. Singular sense and plural sense. In singular sense, we have learnt it is a branch of mathematics. And in plural sense, it refers to data. अब बच्चों जब हम डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 9th क्लास में दो टाइप का डेटा डिस्कस किया था. One was ungrouped and the other is grouped. Ungrouped data, if you just write the data individual values. फॉर एग्जाम्पल मैं यदि मार्क्स लिखना चाहूं आप लोगों के, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 30, 17, 25, 16, 18, 11, 12, 29, 30 and so on. This is ungrouped data. When we write the individual values, it is known as ungrouped data. और बच्चों लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा का यदि आपको मीन फाइंड करना है, मीन which is represented by x bar, it is simply equal to summation x upon n. Summation x upon n, this is for ungrouped data. Then that you can say sum of all observations divided by the number of observations. यह आपने already 9th क्लास में पढ़ा था. सेकेंडली इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन, ध्यान रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मीडियन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट. काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐड नहीं करना, काउंट करना कितने ऑब्जर्वेशंस है. लेट द वैल्यू बी एन. सेकेंड स्टेप हमारी होती है अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज कर लें. उसके बाद जो सिचुएशन आती है, इन दैट after arranging the data in ascending or descending order, we have to see whether n is odd or even. Whether n is odd or even. So students, we have seen to find out the median, first we have to count the number of observations. पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करना है,
उसके बाद फिर अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, we need to see whether n is even or odd. If n is odd, then in that case median will be n plus 1 upon 2th observation. Median is n plus 1 upon 2th observation. And secondly, if n is even, then in that case the median will be the average of two middle values. दो मिडल वैल्यूज आएंगी उसमें, उसका आपको एवरेज निकालना है. तो यहां पर ये मीडियन आपके पास आएगा n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. So when n is even, we have discussed that median is equal to n upon 2 plus n upon 2 plus 1th observation divided by 2. We'll take an example of both of this and then we'll see the third measure of central tendency, that is mode. So let's take an example of both. Suppose if the values arranged in ascending order are, marks लिख रहा हूं मैं 17, 19, 23, 27 एंड 30. देखिए यहां पे नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 observations are there. 5 observations are there. So if you have to find out the median, simply it is, बचपन में हमने सीखा था 7th क्लास में कि एक इधर से काट दो, 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 जो बीच में बच गया वही मीडियन हो जाता है. लेकिन यहां वो नहीं करना है हमको बच्चों आपको. तो आइए यहां पर मीडियन हो गया, n की वैल्यू हो गई 5, n is 5, so 5 plus 1 divided by 2, 2th observation, 5 plus 1 is 6, 6 upon 2, so that is the third observation. आप देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा 23, 23 is the third observation. Therefore the median is 23. ओके देखो बचपन में जो सीखा था उसका यदि यहाँ यूज करते तो क्या होता है 17, 30, एक एक इधर से काट दिया, एक एक इधर से काट दिया, बच गया हमारे पास क्या 23 एंड दिस इज द मीडियन. बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज. 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो हम ठीक है ये कर सकते हैं. लेकिन हम 101 ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको और पूछा मीडियन कौन सा होगा. So we are not going to go for this one. We'll just use the formula. Okay, is it clear? Okay, when n is even, that means suppose if I have 6 observations. If I have 6 observations, मान लीजिए मार्क्स है मेरे पास 13, 15, 21, 22, 25, 30. Okay. अब देखिए अब हम यदि मिडिल वैल्यू की बात करें, जो हम बचपन में जो मेथड सीखा था उससे यदि चलते हैं तो ये 2 सर्कल हो गए, ये 2 भी सर्कल हो गए. अब बचा हमारे पास बीच में जो वैल्यू बच रही है वो 2 वैल्यूज बची है मिडिल वैल्यूज. तो हमें क्या करना है बच्चों, 21 प्लस 22 अपॉन 2, 43 अपॉन 2 एंड दैट इज 21.5 इज द मीडियन. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू बाय दिस मेथड. We'll take it as n is equal to 6. n is equal to 6. Even number है तो n by 2. So median will be equal to n by 2. 6 by 2. 6 by 2 is third. And 6 by 2 plus 1 is fourth. Third plus fourth upon 2. अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा. कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, थर्ड प्लस फोर्थ, 3 प्लस फोर्थ, 7 अपॉन 2, 3.5 लिख दिया. दिस इज नॉट टू बी डन, दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं करना है. हमने बोला थर्ड, 3 नहीं बोला, थर्ड बोला. तो थर्ड वैल्यू देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. थर्ड वैल्यू हमारी 21 है. फोर्थ वैल्यू हमारी 22 है. तो 21 प्लस 22 अपॉन 2 जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, this is 43 upon 2 and that comes out to be 21.5 is the median.
So this is the way we have to find out the median when it is ungrouped data. When it is ungrouped data, okay, individual observations are given to you. Third measure of central tendency which we have learnt is mode. Mode. It is the value having highest frequency. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही होता है मोड. वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या तो ये कह लें या ये कह लें विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बार बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है, वही होता है मोड. Whatever value is repeated maximum number of times is considered as the mode. एक और कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दे बच्चों, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. रेंज. रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, और यू कैन से हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस lowest observation is known as range. Okay, another one very important. Now we are moving towards group data. Discrete frequency distribution, या हम ये कह सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आपने सीखा था बच्चों. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड हाउ टू मेक एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन क्लास 8 एज वेल एज 9. तो उसमें हम क्या करते थे, हम यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर टैली मार्क्स लगाते हैं, और टैली मार्क्स को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. तो ये जो डेटा होता है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर हमारे पास वैल्यूज होती है, मतलब वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 x3. टैली मार्क्स लगाने के बाद काउंट करके हम फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं f1 f2 f3. ओके, दीज आर फ्रीक्वेंसीज, दीज आर वैल्यूज. अब बच्चों यहां पर इस डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा. Now let's see how to find out the mean for this and mode for this one. Median हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके लिए. So here this is, हालांकि ये भी पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों. So now for this what we need to do, फ्रीक्वेंसी को हमने f से रिप्रेजेंट किया, वेरिएबल्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो हम यहां पर एक कॉलम और एक्सटेंड करते हैं. वी एक्सटेंड वन कॉलम हियर एंड इन दैट वी राइट f इंटू एक्स. f इंटू एक्स मतलब वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज को आपको मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस. सो वी गेट हियर f1 इंटू x1, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3. अब यहां पर इसका हमको टोटल निकालना है, और जो टोटल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन fx से. सम ऑफ fx, इस कॉलम का हम सम करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन fx से, और दूसरा हम फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, टोटल यहां भी करना है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय समेशन f. Now the formula to find out the mean is mean x bar. Mean x bar is equal to summation fx upon summation f. Summation fx upon summation f. I'll give you an example of this one also. Summation fx upon summation f is the formula to find out the mean. The table shows
marks obtained by the students of class 10th in UT2. Out of 30, find mean marks. मीन फाइंड करना है बच्चों. टेबल आपको ये दिया हुआ है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, marks and number of students. 15 marks 3 students, 17 marks 5 students, 25 marks 12 students, 27 marks 5 students, 30 marks again 5 students. See this here, marks is x variable, number of students represents the frequency, that is f. अब यहां पर बच्चों हमने डिस्कस किया था कि आपको f इंटू एक्स फाइंड करना है. मल्टीप्लाई करें सिंपल. 15 3s are 45, 17 5s are 85, 25 into 12 is 300, 27 into 5 is 135, 30 into 5 is 150. Now we have to find out the total of the two columns we have. दो कॉलम्स का टोटल निकालना बच्चों. यहां से टोटल करेंगे समीशन f और यहां से टोटल करेंगे तो समीशन fx. अब ऐड कर लीजिए. You have 12 plus 8 20 plus 10 30 is summation f और समीशन fx आपका आएगा 5 plus 5 10 plus 5 15, that is 5, remainder is 1. 5 plus 8 13 plus 3 16 plus 5 is 21, remainder is 2. 2 plus 3 5 plus 1 6 plus 1 is 7. 715 is the summation of x. Now mean x bar is equal to summation fx upon summation f, which is simply equal to 715 upon 30. You can just divide it and get the answer. 3 2s are 6, 1 remainder, 3 3s are 9, 2 remainder, 3 8s are 24, 1 remainder, 0.3 here, decimal will be shifted here. 23.83 is the mean. So this way we can find out the mean for, this is also ungrouped data or discrete frequency distribution. Now if you are asked mode, very simple one बच्चों, mode बोला था जो frequency सबसे ज्यादा है उससे related value mode हो जाएगी, तो mode is 25. Okay, mode is 25. We'll be calculating the median later. Median बाद में calculate करेंगे. Is it clear? So good morning. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Practice the questions. Thank you. Once again, let's begin with continue the yesterday's topic, that is data. We have classified into two types: ungrouped and grouped. तो ये जो अनग्रुप्ड डेटा था बेटा, इसमें दो टाइप के डेटा हमने डिस्कस कर लिए थे. इंडिविजुअल डेटा, जबकि केवल वैल्यूज दी होती है, जिसको हम रॉ डेटा भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रॉ डेटा.
रॉ मतलब जो जैसा हमने कलेक्ट किया वैसा ही नोट कर लिया, दैट इज रॉ डेटा। उसको हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, दैट बिकम्स डिस्क्रीट डेटा। दैट बिकम्स डिस्क्रीट, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें x होता है, f होता है। x मतलब वेरिएबल, f मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, और मीन फाइंड करने के लिए हमने देखा था f इंटू एक्स फाइंड करते हैं, वी फाइंड मल्टीप्लाई x इंटू एफ and then we find out the sum of all frequencies, that is summation fx, and we find out the sum of all frequencies, this is sum of all fx, this is summation fx, sum of all frequencies, that is summation f, and mean is equal to summation fx upon summation f. This is for discrete data. For raw data we have considered mean x bar is equal to summation x upon number of observations, sum of all observations divided by number of observations. Now we come to the next, which is the important part and definitely the part of our syllabus, that is group data. अब बच्चों ग्रुप डेटा में जब हम आते हैं तो ग्रुप्ड का मतलब क्या है? ग्रुप्ड का मतलब यह है कि जो भी आपकी मार्क्स की या जो भी डेटा की रेंज होती है, उस रेंज को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच यू आर वेल अवेयर ऑफ, जैसे कि आपने देखा आपकी मार्कशीट्स जो होती है उसमें ग्रेड्स लिखे होते हैं A1 A2, देन B1 B2, देन C1 C2, देन D एंड देन E। सो ये व्हाट इज दिस A1 A2? A1 A2 क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 है क्या एक्चुअल में? दिस इज एक्चुअली द रेंज ऑफ marks A1, A2, B1, B2, C1, C2, then comes D and further comes E। तो बच्चों ये जो A1 है that is above 90%, more than 90 it is A1। when we say more than 90 it means 91 to 100 is included in this। ओके 91 to 100 is included in this। उसके बाद 81 to 90 जो होता है वो आपका A2 में आ जाएगा। देन कम्स 71 से 80 जो होता है वो B1 ग्रेड हो जाता है। देन कम्स 61 to 70 दैट कम्स इन B2। और इसी तरीके से दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन, we have actually divided the whole range of data from 0 to 100, 0 से लेकर 100 तक की जो हमारी रेंज होती है उसको हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। These groups in terms of statistics we call as class intervals। तो सबसे पहला टर्म बच्चों आपको यहाँ पता होना चाहिए, that is class intervals। So class intervals are the smaller groups of data, group of data। जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसको हम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में जो डिवाइड करते हैं, ईच ग्रुप इज नोन एज क्लास इंटरवल। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट इज क्लास साइज। सी दीज टू टर्म्स विल बी डिस्कसिंग हियर। नेक्स्ट इज क्लास साइज, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिड वैल्यू और क्लास मार्क। Next one is class size or class mark. These two terms are very important, students. You need to remember this. So class intervals, small groups of data, are known as class intervals. For example, when we take 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. These are class intervals. ये class intervals है. There are
5 class intervals here. This is continuous data. This is continuous data, or you can say continuous class intervals. It may also be like this: 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. This data is known as discontinuous data or discontinuous class intervals. Why discontinuous? Because we see that there is in between, you see the upper limit of first class interval. These numbers are known as upper limits, these are known as lower limits. तो यहां पर बच्चों ये है लोअर लिमिट्स और ये है आपकी अपर लिमिट्स. यहां पर ये है आपकी लोअर लिमिट्स और ये है आपकी अपर लिमिट्स. So we say that when the upper limit of first class interval and the lower limit of second class interval is same. देखिए ये same है 10, 20, 30, 40. When the upper limit of any class interval and the lower limit of the next class interval is same, it is known as continuous data. And if the upper limit of first class interval, there is a gap in between these two, इन दोनों के बीच में गैप है बच्चों 1 यूनिट का. यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का गैप है, इसके बीच में 1 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है. नॉर्मली देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 1 यूनिट, 1 से ज्यादा का नहीं होता है. सो दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस डेटा. ओके, नाउ दिस डिसकंटिन्यूअस डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस डेटा. डिसकंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्लास साइज क्या होता है और क्लास मार्क क्या होता है. सो टू कन्वर्ट नाउ डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, जो डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है उसको आपको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू सी द गैप, डिफरेंस कितना है, हाउ मच इज द गैप. तो यहां पे यदि हम देखें तो गैप जनरली 1 का ही होता है. See, we call this as you can say 1 divided by 2, that is 0.5. So what we have to do, add 0.5 to each upper limit. UL लिखा है बच्चों, UL मतलब upper limit, and subtract 0.5 from each lower limit. Add 0.5 to each upper limit and subtract 0.5 from each lower limit. हर एक लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना है, मतलब यहां से आपको माइनस 0.5 करना है और यहां पर आपको प्लस 0.5 करना है. देखिए पहले भी हम एग्जांपल देख चुके हैं. ये मान लीजिए दो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, दोनों को मिलना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है. सो एंड बोथ ऑफ देम सेज दैट दे विल नॉट बी मूविंग, कि दोनों 1-1 किलोमीटर पूरा रास्ता तय नहीं करना चाहते, तो दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. और कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में यही होता है कि भाई तू 0.5 किलोमीटर चल ले, मैं भी 0.5 चल लेता हूं, तो डेफिनेटली दोनों आकर के मिल जाएंगे और एंड विल हैव द डिस्कशन. ओके, वही चीज यहाँ पे की है. यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है. 9 और 10 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करने के लिए इसको 0.5 बढ़ाना पड़ेगा और इसको 0.5 कम करना पड़ेगा. देखिए नंबर लाइन पे भी बच्चों देख सकते हैं अपन, यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 10 हो गया. अब दोनों को मुझे सेम पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे लेकर आना है, तो मैं इसको 0.5 बढ़ा दूंगा और मैं इसको 0.5 प्लस कर दूंगा. मतलब यहां पर मैंने क्या किया, 0.5 प्लस किया है और यहां पर मैंने क्या किया,
0.5 माइनस किया है. सो वी सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम ईच लोअर लिमिट and add 0.5 to each upper limit so that the class intervals become continuous. तो देखिए अब ये वाला डेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर के. फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आता बच्चों, केवल लिमिट्स चेंज होती है. 0 में से 0.5 माइनस किया, माइनस 0.5 टू 9.5. यहां से 0.5 माइनस करना है सबको. 10 में से 0.5 माइनस किया 9.5, 20 में से 0.5 माइनस किया 19.5, 30 माइनस 0.5 29.5, 40 माइनस 0.5 39.5, और अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस करना है. 9 प्लस 0.5 इज 9.5, 19 प्लस 0.5 इज 19.5, 29.5 39.5 49.5. Now this has become continuous. Okay. Okay students, next is class size. क्लास साइज भी कह सकते हैं और विड्थ भी कह सकते हैं इसको. क्लास साइज और क्लास विड्थ. अब यहां पर फिर से मैं दो टर्म्स यूज करूंगा बच्चों, एक कंटिन्यूअस के लिए और एक डिसकंटिन्यूअस के लिए. ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फॉर कंटिन्यूअस डेटा, for continuous data it is simply equal to upper limit minus lower limit. For continuous data class size is equal to upper limit minus lower limit. इसको आप h से रिप्रेजेंट करते हैं. we represent it by h. h is the class size which is equal to upper limit minus lower limit for continuous data. If the data is discontinuous, for discontinuous data it will be equal to upper limit minus lower limit plus 1. Upper limit minus lower limit plus 1, that will give you the class size for discontinuous data. 1 का जो गैप होता है वो इंक्रीज, क्योंकि इंक्लूसिव डेटा है. अपर लिमिट्स इंक्लूड होती है, लोअर लिमिट्स इंक्लूड होती है, इसलिए इसमें प्लस 1 किया जाता है हमेशा. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1. दूसरा तरीका है कि आप डिसकंटिन्यूअस को पहले कंटिन्यूअस बना लो और फिर उसके बाद क्लास साइज फाइंड कर लें. ओके, तो दिस इज क्लास विड्थ. नेक्स्ट टर्म इज class mark. See, don't get confused with these two terms. These are very important terms here. Class mark. Class mark we can also say mid value. और बच्चों मिड वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट divided by 2. Class mark is the mid value and to find out it is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. For example, देखिए दोनों के लिए क्वेश्चन लेते हैं. Suppose you have the data like 15 to 40, 15 to 40, 40 to 65, 65 to 90. Now if I ask you the class size, see the class size is uniform here. जो डेटा लिखा है उसका क्लास साइज सेम है, तो क्लास साइज होगा 40 माइनस 15, that is 25. 65 minus 40, again 25. 90 minus 65, again 25. This is uniform class size. That is h is equal to 25. अब हम बात करें इसके लिए, यदि क्लास मार्क हमको फाइंड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो 15 to 40 क्लास मार्क. क्लास मार्क यू कैन ऑल्सो से इट एज मिड वैल्यू, और इसी को हम x से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज क्लास मार्क विल रिप्रेजेंट दैट क्लास इंटरवल.
तो 15 to 40 the class mark will be 15 plus 40 upon 2, that is 27.5. सेकेंड वाले का आएगा 40 plus 65 upon 2, 105 upon 2, that is 52.5. और थर्ड 65 to 90, इसका आएगा 65 plus 90 upon 2, that is 155 upon 2, which is equal to 77.5. So this is the class mark or mid value of the class interval. So students, we have discussed all the basic concepts which are related to statistics. Now we'll see what you have to learn in this particular chapter. यहाँ पे बच्चों आपको जो पढ़ना है, that is first you have to learn how to find out mean for grouped data. Mean for grouped data. मीन फॉर ग्रुप डेटा में हम आपकी बुक में 3 मेथड से हम तीनों डिस्कस करेंगे, एक सिलेबस में नहीं. द वन इज डायरेक्ट, द अदर वन इज शॉर्टकट, और ऑल्सो नोन एज assumed mean method. And the third one is step deviation method. So this step deviation method is excluded, so we will discuss it later. Given in NCERT but not in your syllabus. Secondly, the second topic, actually these are all central tendencies. इन सबको कहते हैं बच्चों सेंट्रल टेंडेंसीज. सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, अगेन फॉर ग्रुप डेटा. ये जो भी हम बात कर रहे हैं केवल ग्रुप डेटा की बात करेंगे, नॉट फॉर अनग्रुप्ड वन. सेकंड इज मीडियन. And the third one is mode. आपकी बुक में फोर्थ पार्ट भी है, that is graphs, which are known as cumulative frequency curves. Also known as ogives. But this is excluded from syllabus. तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, मीडियन और मोड फाइंड करना, एंड देन लेटर ऑन ड्यूरिंग रिवीजन विल गो फॉर स्टेप डेविएशन एंड क्यूमुलेटिव आल्सो. ठीक है, ये रिवीजन में करेंगे, ये वाला पार्ट विल नॉट लीव इट, बट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस पार्ट. So students, let's discuss the mean for group data. First method, method number 1, which is direct method. Direct method, very simple one. जैसे अभी अपन ने अनग्रुप डेटा के लिए किया था, बिल्कुल वही करना है. सब एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा आएगी, देखिएगा क्या है. देखिए क्लास इंटरवल्स गिवन होता है, इसमें 2 पार्ट है पूरे टेबल में. एक पार्ट आपके पास गिवन होगा, दूसरा पार्ट हम फाइंड करते हैं.
तो देखते हैं क्या क्या गिवन होता है यहां पर। देखिए क्लास इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल्स आर गिवन, इसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है। एफ से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये पार्ट आपका हो गया गिवन, इतना हमको दिया होता है क्वेश्चन में। अब हमें देखना है फाइंड क्या क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड। सो फर्स्ट वी विल फाइंड क्लास मार्क which is represented by x। पहले आपको क्लास मार्क्स फाइंड करना है which is represented by x। अभी हमने डिस्कस किया था क्लास मार्क इज इक्वल टू, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। क्लास मार्क हो गया। सेकंड में हमें फाइंड करना है एफ एक्स, जो कि हमने अनग्रुप डेटा में भी किया था। एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू। आफ्टर दैट विल फाइंड आउट summation fx, add all fx to get summation fx, add all frequencies to get summation f, and the formula is x bar is equal to summation fx upon summation f। x bar is equal to summation fx upon summation f। Okay, okay students, so this is the data given to you। number of plants, that is the class intervals, number of houses represents the frequency। ये given part है। this is question number 1 of exercise 14.1 of your NCERT book। NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है 14.1 का, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT। now to solve this, see this is f which is already given। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहां से आपको सबसे पहले क्लास मार्क्स फाइंड करना है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द क्लास मार्क that will represent x। class mark will represent x। so just calculate all the class marks। 0 plus 2 upon 2, that is 1। 2 plus 4, 6 upon 2, 3। 4 plus 6, 10 upon 2, 5। 6 plus 8, 14 upon 2, 7। 8 plus 10, 18 upon 2, 9। 10 plus 12, 22 upon 2, 11। 12 plus 14, 26 upon 2, 13। Okay, this is class mark। now another column we need to find fx, f into x। let's multiply the values of x with the corresponding frequencies। we will get fx, and then we have to find out the sum of all frequencies, that gives you summation f, and sum of all fx, that will give you summation f। this will give you summation f, and this will give you summation fx। so here let's see, 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 5 9 plus 6 15 plus 2 17 plus 3 is 20। so summation f is 20। now 1 into 1, 1,
2 into 3, 6, 1 into 5, 5, 5 into 7, 35, 6 into 9, 54, 2 into 11, 22, 3 into 13, 39। बच्चों एक बार लिखते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है वंस डिजिट को वंस डिजिट के नीचे लिखें, टेंस को टेंस के नीचे लिखें, जैसा बचपन से सीखते चले आए हैं। क्योंकि यदि आपने यहाँ आगे पीछे लिख दिया तो डेफिनेटली टोटल में गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपको इसको वंस के नीचे लिखिएगा, टेंस को टेंस के नीचे लिखिएगा, और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर ले तो हम इसको 2 डिजिट कर सकते हैं ताकि गलती बिल्कुल भी ना हो। अब देखिए ऐड कर लेते हैं। 1 plus 6, 7 plus 5, 12 plus 5, 17 plus 4, 21 plus 2, 23 plus 9, 32. This is 2. Remainder is 3 here. 3 plus 3 is 6 plus 5, 11 plus 2, 13 plus 3 is 16. 162 is summation fx. So we have obtained summation fx, we have obtained summation f. Now we have to simply apply the formula mean x bar is equal to summation fx upon summation f, which is equal to 162 upon 20. 162 upon 20, तो इसको केवल आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 10, 81 and 81 upon 10, which is equal to 8.1. So 8.1 is the mean number of plants per house. Very simple method, students, very simple one. Okay, is that clear? Okay students, now with the help of this direct method you solve now. Now your assignment is NCERT question number 1 we have already done, 2, 3, 4, 5. Sorry, third one we'll discuss later. It is based on missing frequencies. So 2, 4, then 5, 6, 8 and 9. These questions are to be done by you on the basis of today's discussion. Okay students, thank you very much. Have a nice day. Solve the given assignment questions and enjoy your day. Thank you.